Hello everyone, you are watching Crack UPSC with us, and we will be solving here to 2014 prelims question with the techniques we have learned earlier. I have done 3 videos, and you can watch them and later on come back here and then watch this. You will get to know more about these techniques, and you will able to remember, retain all those techniques, and then you can practice on previous year questions so that in when you will set for prelims next year or next year, so that you will able to solve those questions which we can solve with techniques. If there is 20 in this question paper of 2014, there is 20 to 25 questions which we can solve with techniques even without having any knowledge of that question. So if you will learn this, definitely you are going to clear the prelims. If your score is around without knowing these techniques is 30 questions, 35 questions, so that's a good amount of question if you know. And we will solve this question paper. So I have series A here, and if series A here, then we will look into the question only those which we can solve by the techniques. So here this question is, what are the significance, advantages, uses, benefits. This is a kind of positive thing here asked. And about positive initiative, this is a sustainable sugarcane initiative. So we have to look into two things, whether it's a positive initiative and whether they asked about positive things of this initiative. So if they ask positive things, we have to look into positive uh, statements. In so first statement, seed cost is very low in this compared to the conventional method of cultivation. Seed cost low means it's a very good will help farmers. Drip irrigation can be practiced very effectively in this. Drip irrigation is also an efficient technique to irrigate the crop, and that if it is help can easily effectively we can practice, means that is also positive statement. In this statement here, can be also there. So can be also there means it is all going to be a correct statement. Third statement is there is no application of chemical inorganic fertilizer at all. So this is a very extreme statement, so we will cancel out this statement. If we will cancel out this statement, then we have left with the option 3, option A gone, option C, option D, where we have 3. So we left with option B, and that is the correct answer. If we read the fourth statement, the scope for intercropping is a good thing. If we do intercropping, it's a very beneficial for the soil fertility. So intercropping is more in this compared to the conventional method of cultivation. So this is a positive thing, so it will be correct. So 1 to 4 is correct here. Next question we will look into is that next question we have, yeah, we can look this as well, but yeah, this is one thing is, if we compare, if anything asked in question asked that compare between is what is the difference between conventional and non-conventional energy, then in statement there will be comparison. So those statement we can't say correct or incorrect. But if any simple question like with reference to technologies, solar power production, consider the following. So here they didn't ask about any means comparison. If they didn't ask comparison, so we will look into the option. The photovoltaics is a technology generate electricity by direct conversion of light into the electricity, while solar thermal is a technology that utilizes sun rays to generate, which is further used in electricity generation process. Photovoltaic generate alternative current, while solar thermal generate direct current. So here full comparison. India has manufacturing base for thermal technologies, but not. And one technique is there that if there is a this can do, but this cannot do. Means if something like this, that India has manufacturing base for solar thermal technology, but not for voltaics. So they are kind of saying this is there, but not this.
So this statement will also wrong and this comparison also will wrong. So here answer will be option 1. So next question we will look into is that yeah, such question like this question is consider the following pairs: Dampa Tiger Reserve, Mizoram Gumti Wildlife Sanctuary. It's in Tripura, not in Sikkim, and Saramati Peak. It's the highest peak in Nagaland. So we have to research on those terms here that about the Dampa Tiger Reserve. Like 2018, there is no tiger in this reserve when the tiger census happens. So this tiger reserve is declared in 1994. All these small things we have to look into. And like Gumti Wildlife Sanctuary, it is in Tripura, and here Asian elephants and all we have to look into what kind of um, animals and mammals or whatever they live in that wildlife sanctuary, and which state with which borders, what they borders, and what plants, flora and fauna is present in this. So because UPSC look into the previous question, then they kind of twist those question or extend those questions. Like next time they can ask like Dampa about Dampa Tiger Reserve, and they will say that is Dampa Tiger Reserve is in Mizoram and it is on western side or eastern side, or mm, X animal is present there and it is endemic to there. All these can they ask, so you have to look into it. Next question is with reference to a conservation organization called Wetland International. So one thing you should remember, those uh, organization which have international in the like mostly of two words like Wetland International or Amnesty International or Wildlife International. Such organizations are NGOs and not intergovernmental organizations. You have to remember that mostly they are NGOs. And you, if there is international like International Atomic Energy or something like that, there is a long name and in between there is an international, then that is a different thing. But if it is like that Wetland International, so those are NGOs and not intergovernmental organizations. So statement says it is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatories to Ramsar. So this statement is incorrect. Second statement, it works at the field level to develop and mobilize knowledge and use the practical experience to advocate for better. So this statement doesn't seems wrong because they didn't claim anything bigger and they didn't have any negative uh, kind of connotation in here. So this statement is correct and option 2 is B is correct answer here. So we will look into next question, which is here like this: BRICS. With reference to a grouping of countries known as BRICS, consider the following. So facts: if number is given anything, they are mostly wrong. So first summit of BRICS was held in Rio de Janeiro, but her number is correct. It definitely held in Rio de Janeiro, but the city is a Russian city, not in Brazil, Rio de Janeiro. The South Africa was the last to join the grouping, yes, because first it was like BRIC, not BRICS. So in 2010, I think South Africa have joined BRICS. So option 2 is correct here. Next question we will look into like uh, like this: if which of the following phenomena might have influenced the evolution or of organism. If in question itself is there might have or can be all those, then most of the statements are correct. So here which of the following phenomena might have, if mostly might, keep remember this thing that might have influenced the evolution of organism. So if there is a might, then both the statement will be correct here. So option 1 and 2 will be correct here. And what is this? So here the other than poaching, what are the possible reason here? Reason, concern, and disadvantages. If such things has been asked it in a negative sense, then all the negative statement down will be
incorrect. So for the decline of decline in the population of Ganges river dolphins, so construction of dam of the river and barrages on the river, obviously increase in the population of crocodiles. That is not seems like means population. If crocodiles population will increase, then is there any relation with decrease in that dolphins population? That's kind of out of the way statement, and you can easily eliminate getting trapped in fish nets accidentally, and use of synthetic fertilizer, other cultural chemicals in crop fields in the vicinity of rivers. So this statement seems correct, and option C 134, because 2 is like a you can guess easily that is not a correct statement. So next question we have this is 16th question. Brominated flame retardants are, which is a something in negatively, like they have asked they have asked concern. So used in many household products like mattresses and upholstery. Why is there some concern about their use? So जो अगर कंसर्न है कि कोई रीज़न पूछे हैं या कोई डिसएडवांटेजेस पूछी है, तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, नेगेटिव इन द सेंस इफ देयर इज नेवर नॉट लाइक दैट. नेगेटिव मीन्स अगर उनका कोई एप्लीकेशन नेगेटिव है, लाइक दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन. अगर वो डिग्रेडेशन के लिए रेजिस्टेंट है, मतलब कोई चीज़ लाइक प्लास्टिक वो डिग्रेड नहीं होगा तो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा. कोई पशु खा लेगा, पक्षी खा लेगा, तो उसको हार्म करेगा. उसी तरह से ये भी जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स है वो हाईली रेजिस्टेंट है टू डिग्रेडेशन. कोई चीज़ इजीली डिग्रेड हो जाती है, वो बेनिफिशियल है एनवायरनमेंट के लिए. सो यहाँ एक नेगेटिव सेंस में ये स्टेटमेंट रखिए. दे आर एबल टू एक्यूमुलेट ह्यूमन इन द ह्यूमन एंड एनिमल्स. ऑब्वियसली अगर वो ह्यूमन और एनिमल में एक्यूमुलेट होगा, लाइक बायो एक्यूमुलेशन, वी कॉल बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन. अगर कोई ऐसा केमिकल है जो कि बॉडी में फूड चेन में वो एक्यूमुलेट हो रहा है धीरे धीरे, सो दैट इज इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट. एंड अगर वो नेगेटिव है तो हमारे को नेगेटिव ही स्टेटमेंट देखनी थी. दोनों नेगेटिव है तो दोनों ही यहाँ सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखेंगे, लाइक ये है क्वेश्चन. यहाँ भी कंसिडर द फॉलोइंग बैट्स, बियर्स, रोडेंट. द फिनोमिनन ऑफ हाइबरनेशन कैन बी, माइट, कैन बी, आर. तो इफ अगर वो चीज़ें स्टेटमेंट में लिखी है तो मोस्टली जो जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो सही ही होगी. तो यहाँ जो तीनों स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट कहें या तीन जो ये नाम दिए हैं वो तीनों ही सही है. वो हाइबरनेशन कर सकते हैं. सो आपको ये भी ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ, ये भी एक क्वेश्चन देखने लायक है, बट यू कैन लुक इट इनटू योरसेल्फ. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, yeah, we will look into this question. Which of the following are some important pollutants? Pollutant कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं, मीन्स नेगेटिव चीज़ ही है. सो नेगेटिव चीज़ है तो हमारे को जो नेगेटिव है वो मतलब ये केमिकल्स सारे कोई ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कोई रखेगी नहीं. तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे केमिकल है जो कि किसी न किसी तरह के तरीके से ह्यूमन और एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. तो मतलब ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ इजीली हो जाएगा आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक हाँ, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में. सो रूल क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही हो. उसके जो ऑप्शन में जितने भी पॉजिटिव स्कीम के बारे में लिखे हैं वो सही होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यूपीएससी में जो मेंबर्स है उनको भी सरकार नियुक्त करती है, और सरकार की चमचागिरी तो ऑब्वियसली बनती है. व्हाट इज आर द फैसिलिटीज द बेनिफिशियरीज कैन गेट, कैन भी है. सो आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं जिससे आपको लग सकता है कि या यहाँ सारी स्टेटमेंट सही हो सकती है.
कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बिजनेस correspondent। अब ये बैंक साथी है जो कि रूरल एरिया में भेजा गया है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके। इतना मतलब ये तो एक ईजी सी बात है कि कोई भी समझ सकता है कि बैंक साथी का पर्पज़ क्या है। अब शहरों में तो बैंक हर जगह है, रूरल एरियाज और उन चीज़ों जगहों में जहाँ बैंक नहीं है वहाँ बैंक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। इट enables द बेनिफिशियरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स इन देयर विलेज। अब आपको ज़्यादा यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, पता नहीं सब्सिडी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी है नहीं है। आपको अगर ये पता है कि सरकारी कोई स्कीम है, सरकारी स्कीम है मीन्स द मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स गोइंग टू बी राइट। सो यहाँ ये भी एक सही बात है कि उसमें उनको बेनिफिट हो रहा है, कुछ ना कुछ जो बेनिफिट हो रहा है, तो ये सही बात है। इट enables बेनिफिशियरी टू इन द रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉ। अब आपको लगेगा डिपॉजिट करते होंगे या नहीं करते होंगे, या विड्रॉ करते होंगे, सिर्फ डिपॉजिट नहीं कर पाते होंगे, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम है, पॉजिटिव बात है, तो आपको वो सही ही होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यस 37 क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अब है नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, ओनली है मीन्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो यहाँ गलत हो गई ये। इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर्स अवे। तो ये एक फैक्ट दिया है, नंबर है या कोई और फैक्ट है, तो फैक्ट आर मोस्टली रॉन्ग। फैक्ट आर मोस्टली रॉन्ग मतलब 2 और 3 गलत है। तो जहाँ 3 और 2 है वो सारी गलत हो जाएंगी, तो यहाँ ऑप्शन एक सही हो गया, ऑप्शन एक सही हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास अब यहाँ है विद रेफरेंस टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव भी कह सकते हैं हम इसको, पॉजिटिव इनिशिएटिव है और पॉजिटिव एनर्जी है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं करती है, कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। सोर्सेज कॉल्ड कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस, कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ हम अगर सॉल्व करते हैं इसको, कोल बेड मीथेन इज द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स, ये स्टेटमेंट ठीक है। वाइल शेल गैस इज मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली, सो ओनली आ गया, इसने सारा कबाड़ा कर दिया। दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री, सो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गया क्योंकि इसने तो काफ़ी एक्सट्रीम चीज़ कही है। इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्स एग्जिस्ट बट फॉर शेल नो शेल गैस सोर्स हैव बीन फाउंड, ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कोई शेल गैस नहीं पाई गई है। मतलब इतना बड़ा देश है, इतने सारे मिनरल्स हैं और शेल गैस नहीं पाई गई है, सो ये भी एक एक्सट्रीम क्लेम है। सो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो उस बेसिस पे हम इसको दोनों को ही एक्सट्रीम बेसिस पे हमने दोनों स्टेटमेंट को कैंसिल आउट कर दिया और आंसर निकाल दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 42nd, ये है इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन है तो मतलब कुछ नेगेटिव ही है, जो नेगेटिव लगेगा आपको उसको काट के, जो कैंसिल आउट करके जो पॉजिटिव है उन, जो नेगेटिव है उसको सही करना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चीज़ के बारे में कुछ, सॉइल इरोजन कोई अच्छी बात थोड़ी है। सो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टेरेस कल्टीवेशन एक अच्छी चीज़ है जो कि मतलब हम सॉइल इरोजन को सेव करने के लिए ही रखते हैं। तो और ट्रॉपिकल क्लाइमेट कुछ लोगों को लग सकता है कि यार बारिश होगी तो ज़्यादा इरोजन होगा, लेकिन जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पेड़ होते हैं, घास होती है, फसलें होती है और हर चीज़ वहाँ होगी। अब जो डेजर्ट है वहाँ ना बारिश होगी ना पेड़ होंगे, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैन वर्क बोथ वेज, इरोजन भी कर सकता है लेकिन इट वर्क्स इन फेवर एज वेल। सो डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो पेड़ पौधों की कटाई, जो बेसिकली इन ऑप्शन में जो एक प्रोमिनेंट लग रहा है कि भाई ये सॉइल इरोजन में काम कर सकता है, तो ओनली ऑप्शन 2 यहाँ सही है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अभी, और अगर आप इतने सारे क्वेश्चन आप सिर्फ टेक्निक से सॉल्व कर पा रहे हैं तो
दिस मीन्स आपको ये टेक्निक्स समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए. द साइंटिफिक व्यू इज दैट द increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. If the global temperature increases beyond 3 degrees Celsius, the pre-industrial level, what can be the possible impact? यहाँ impact पूछा है तो हमारे को पहले तो कोई ऐसी जो नेगेटिव चीज़ लिखी है वो हमको नेगेटिव इन द सेंस उसके इम्पैक्ट में नेगेटिव, नॉट इन द सेंस ऑफ बर्डिंग. बर्डिंग में नेगेटिव है या कुछ एक्सट्रीम है वो हमको एलिमिनेट करनी है उसको. तो सो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टूवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स. कोई पता नहीं है हमारे को कि सही है कि गलत है. वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी भी लगकर वो भी हो ही सकती है. ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर. ऑल है तो मतलब आपको समझना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है. कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर. ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप सीरियल को बीज ही ना सको कहीं भी अगर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा. अब जहाँ 40 डिग्री है वहाँ 3 बढ़ जाएगा तो 47 48 हो जाएगा. लेकिन जहाँ 20 25 है वहाँ 28 29 हो जाएगा. सो वहाँ इजीली वी कैन. तो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. तो यहाँ जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली. सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन. या दिस इज वी हैव नोटेड द रेफरेंस टू नीम ट्री. कंसिडर द फॉलोइंग. सो नीम ट्री भी एक पॉजिटिव, इसका काफ़ी पॉजिटिव यूज है. सो नीम ऑयल कैन बी you should remember all those words, used as a pesticide to control the proliferation some species of insects and mites. अब पॉजिटिव चीज़ पूछी है यहाँ पर, इसके बारे में कुछ भी कैन बी आ गया. कुछ भी पॉजिटिव लिखा है जो आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव चीज़ है तो उसको सही कर दो. आपको पता है नहीं है. नीम सीड्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स. वो भी सही है. नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. वो भी सही है. तो ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव इनिशिएटिव है या पॉजिटिव कोई चीज़ है उसके बारे में है. और तो तीनों स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है. कोई इसमें एक्सट्रीम और नेगेटिव बात नहीं लिखी है तो तीनों स्टेटमेंट सही होगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 66 सॉरी. इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आ गया. तो आपको ध्यान रखना है. कैन बी यूज इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन. अब आइरिस स्कैनिंग आपको लग सकता है. रेटिनल स्कैनिंग आपको. वॉइस रिकग्निशन, आजकल वॉइस रिकग्निशन भी होती है तो सब कुछ होता है. तो और तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 73rd क्वेश्चन. सो कंसीडर द फॉलोइंग. मेज कैन बी तो एक ऐसा मीन्स आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया है कि आप इजीली स्टेटमेंट को बोल सकते हैं कि सही है. यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च. ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी a feedstock for biodiesel. Alcoholic beverage can be produced by using maize. So आपका कैन बी ने आपका ये क्वेश्चन आपको बिना पता हुए भी सही कर दिया है. ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, अगर हम देखें सो ये अब हिस्ट्री पे बेसिकली टेक्निक्स कम काम करती है बिकॉज हिस्ट्री इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी सब्जेक्ट. सो हिस्ट्री हो गया. पॉलिटी में कुछ चीज़ें एक्सट्रीम वर्ड वाली सभी में काम करती है बट कुछ एक्सेप्शन रहते हैं. जैसे पॉलिटी में भी कि भाई गवर्नर के बारे में लिखे कि ओनली गवर्नर कैन डू दिस. सो दैट इज़ ए लिटिल बिट मीन्स वहाँ थोड़ा सा. सो आपको थोड़ा कॉशियस रहना है फिर पॉलिटी और हिस्ट्री में ज़्यादा टेक्निक्स यूज करने का. सो
बाकी चीज़ों में साइंस, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स और आप ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि आप इन चीज़ों में कम है। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, वो है कि in the context of food and nutritional security of India, enhance the seed replacement rate of various crop help in achieving the food production target of the, but what are the constraints? So हमारे पास यहाँ कोई एक इसके नेगेटिव चीज़ पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई ऐसी कमियां हैं या हमारे पास जो कमियां हैं, व्हाट आर कंस्ट्रेंट इन द वाइडर ग्रेटर इम्प्लीमेंटेशन, इसके इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाने उसमें क्या क्या हमारे पास जो बीच जो कंस्ट्रेंट्स है उसको क्या क्या रीजंस है क्या है। सो हमारे को देखना है, तो एक प्रकार से हमारे को एक नेगेटिव चीज़ पूछी है कि भाई क्या क्या हो सकता है जो हमारे को इस जो इनिशिएटिव है उसको बड़ा और वाइडर एरिया में फैलाने के लिए रोकता है या कमियां हैं उसमें। सो देयर इज़ नो सीड पॉलिसी इन प्लेस। तो ये नो तो मतलब एक्सट्रीम हो गया। देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड और प्लानिंग क्रॉप है, ये भी नो एक्सट्रीम हो गया। देयर इज़ अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू पर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई डिमांड सप्लाई की गैप है। सो एक प्रकार से ये हम नेगेटिव तो नहीं कहेंगे बट एक कंस्ट्रेंट है कि भाई हाँ सच में अगर डिमांड सप्लाई गैप है तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, वो एक प्रकार से हमारे इसके साथ कंस्ट्रेंट के साथ फिट बैठ रहा है और ये ही सही है। ओनली 3 इज़ द करेक्ट हेयर। जो पहली दो है हमने वो एक्सट्रीम के बेसिस पे हमने कैंसल आउट कर दी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये एक और बात है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेटमेंट में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन दी है या कोई